as well as what? Yes, pressure. pressure energy. Kinetic energy as well as pressure energy हम दोनों भी क्या करते हैं, यूज करते हैं. अभी ये kinetic energy तो वाटर को ऑलरेडी पेनस्टॉक से मिलती है. ओके, दिस kinetic energy we got from the पेनस्टॉक. पेनस्टॉक से वो पास होता है, इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगी, kinetic energy मिल जाएगी. बट हाउ वी कैन ऑब्टेन द प्रेशर एनर्जी? ये प्रेशर एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? यस, प्रेशर एनर्जी कहाँ से मिलती है? हाइट से. नहीं, हाइट सॉफ्ट टरबाइन से. कहाँ से ऑप्टेन कहाँ पे होगी? जैसे मैंने Nozzle. दूसरा बताया, kinetic energy नोजल के थ्रू हम ऑप्टेन करते हैं. नोजल. This is the kinetic energy we are getting from the nozzle in impulse turbine. I am asking about the pressure energy in a reaction turbine. How we get the pressure energy in a reaction turbine? Which elements or which part we are using to obtain pressure energy? Yes. Here we are using what? Involute casing. Is it? yes sir. Casing means what? Cover. Involute covering of the turbine. आपको जो टर्बाइन उसका जो केसिंग है वो क्या रहेगा आपका? इन्वॉल्व रहेगा. तो उसकी वजह से हमें प्रेशर एनर्जी मिलती है. एज वेल एज वी आर यूजिंग व्हाट? ड्राफ्ट ट्यूब. इज इट? वी आर आल्सो यूजिंग द ड्राफ्ट ट्यूब. सो जो वाटर है आपका, उसको जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाटर आपका क्या हो जाएगा, टर्बाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक हो जाएगा. सो टर्बाइन के ब्लेड जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे. सो ये जो ब्लेड है हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है, इस शाफ्ट पे. सो शाफ्ट भी टर्बाइन का रोटेट होना शुरू कर देगा. शाफ्ट ऑफ टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ जनरेटर. सो जनरेटर will again start to rotate and it will produce what? Electricity. And that electricity we are passing through the various type transmission lines. And what will be the water we get from this turbine outlet? We are releasing it to the टेल रेस. ये हम वाटर क्या करते हैं, टेल रेस को पास करते हैं. इंपल्स टर्बाइन में जो वाटर हम पास करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पास करेंगे. पेल्टन वेल टर्बाइन जो बताया था, जैसे वाटर आता है वैसे हम एटमॉस्फेयर में जाके इसको रिलीज कर देंगे. बट इन रिएक्शन टर्बाइन ये जो आपका वाटर है, ये वाटर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से पास करते हैं. वी आर रिलीजिंग दैट वाटर विथ अ हाई प्रेशर, ओके, into the atmosphere due to this draft tube की वजह से. So this is the hydroelectric power plant. I think up to this all of you clear the power plants: steam power plant, nuclear power plant, hydroelectric power plant. All these plants are covered and I think this is clear to you. समझ आया सभी को ये तीनों? Yes sir. Yes sir. Yes. Yeah. Now next we will move towards the solar energy. Now कोई बता सकता है कि सोलर एनर्जी जो रहती है, वो सोलर एनर्जी का यूज हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में? यस. Light energy is converted into electrical energy and stored in cells. Okay, which cells? Yeah, up to some extent you are correct. Which cells? Solar cell. Solar cell. Okay. Let's see. Photovoltaic. Okay. Photovoltaic cells. Now let's see. Generally, okay, what is the basic funda behind this one? Generally, the sun will deliver 3.7 into 10 raised to 20 megawatt energy to the earth. Generally, sun delivers 3.7 into 10 raised to 20 megawatt energy in the universe. And out of this energy, our earth will absorb approximately 1.85 into 10 raised to 11 megawatt. Our earth will absorb 1.85 into 10 raised to 11 megawatt energy. Now that energy we are utilizing to
convert that solar energy into what? Electricity. सर वो इस इसका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे सर आपका वॉइस लैग हो रहा है now yes वॉइस ब्रेक हो रहा है. now Voice break, sir. now it is clear. Yes, sir. I think Yes. yeah, I think those who have the voice issue or some lagging issue, maybe they have the network issue. उनको शायद network issue हो सकता है. Okay. So be assured that you are staying in the network. Okay. Now let's see. यहाँ पे जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है, उस सोलर एनर्जी हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक तो पहली जो है, पहले हम बोलते हैं इसको थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. फर्स्ट वन इज व्हाट? थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. एंड सेकंड वन इज व्हाट? फोटोवोल्टिक एनर्जी कन्वर्जन. थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एंड फोटोवोल्टिक एनर्जी कन्वर्जन, ये दोनों जो है वो क्या हो गए आपकी डायरेक्ट मेथड. और दूसरी जो है आपकी इनडायरेक्ट मेथड्स. नाउ इन इनडायरेक्ट मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. हाइब्रिड मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हम टाइडल का भी यूज कर सकते हैं, वाइंड का भी यूज कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, देन वेव एनर्जी का और ओशन थर्मल एनर्जी का, इन सभी का मिला के भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड. इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड मोड. ओके, सोलर प्लस दिस. एंड अभी यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड रहेगी आपकी, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे, इस डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली सन एनर्जी यूज करेंगे. इसमें दो मेथड्स हैं, एक है आपका थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एंड फोटोवोल्टिक एनर्जी कन्वर्जन. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. अभी ये रहेगा आपका सोलर पावर प्लांट. दिस इज द सोलर पावर प्लांट. ऐसे रहता है ना आपका, इज इट? यस सर. Yes, sir. यस सर. Yes. Now let's see. Generally in solar power plant, now it is based on what? Conversion of sunlight into the electricity. Sunlight का conversion हम किस में कर रहे हैं, electricity में. Okay, either by photovoltaic cell or by what? Concentrated solar power. Either by concentrated solar power. अब ये concentrated solar power क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ. Okay. Now let's see, this concentrated solar power system uses what? Lens or mirrors and tracking system to focus a large area of a sunlight into the small beam. Okay, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ. अभी अगर मैंने आपको बताया तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा. So when we move towards this point, actually the solar power plant, then it will clear to you. So currently, just remember this one. We are using directly the photovoltaic cells or what? Directly, or second is what? Concentrated solar power. Okay. Now here in photovoltaic में हम क्या करते हैं, this photovoltaic converts the light into electric current using the photoelectric effect. डायरेक्टली जो photovoltaic cells होते हैं वो क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है मालूम है आपको? हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड? हम कब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ? यस, Electrons pass होते हैं. So when simply. light falls on a metal, then electrons release from the surface of the metal and electric current flows through it. Yeah, whenever we have the electron movement, whenever we have the electron movement, then we can call here the electricity will produced, is it? जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देंगे, वो मूव होना शुरू कर देंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. बराबर है क्या? Yes, sir. यस यस सर. यस. अगर इलेक्ट्रॉन की अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी क्या? यस, नहीं. नो. No, sir. नो. अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स भी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस होगी ना. सो हियर इन फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होते हैं कि जो सोलर की हीट एनर्जी रहती है उसकी वजह से आपके जो फोटोवोल्टिक सेल्स रहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं. एक्साइट हो जाते हैं मतलब उनमें मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, एंड दैट विल मूव टुवर्ड्स द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो दैट इज द फोटोवोल्टिक इफेक्ट. समझ में आया? Due to the heat energy of a solar, so due to the heat energy, electrons of your plates are get excited and they are starting to flow. So whenever the electron will flow, it will create the electricity.
नाउ फोटोवोल्टिक कन्वर्जन में जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी कम प्रोड्यूस होती है। ओके, वो हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ सोलर पावर प्लांट। इसमें आपका वर्किंग कैसे है? मैंने आपको पहले ही बोला कि दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट में दो मेथड्स हैं, एक तो आपको फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज द सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी में हम करेंगे कि डायरेक्टली जो सन रहेगा उससे जो हीट आती है, उस हीट से हम क्या करेंगे, आपकी जो बेस प्लेट रहेगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसकी क्या हो जाएगी, मूवमेंट होना शुरू कर देगी। सो इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। हियर लेट्स सी photovoltaic electricity. This method uses what? Photovoltaic cell that absorb the direct sunlight, just like the solar cells you see on the same calculator. Okay, ये solar cells आपने देखे होंगे, is it? देखे क्या आपने सोलर सेल्स? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पे यूज करते हैं हम? यस, सोलर सेल्स कहाँ पे यूज करते हैं? यस, आपके सोलर घर में जो कुकर, सोलर कुकर, ओके ठीक है। सिंपल Solar एग्जांपल अगर आप geyser. देखें, सोलर गीजर, ओके। स्ट्रीट्स पे लाइट्स होती है वो। Street, sir. साइंटिफिक कैलकुलेटर, या स्ट्रीट लाइट्स, ओके, स्ट्रीट लाइट, वेरी गुड। सैटेलाइट्स। देन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, satellites, yeah, whatever the calculator you are Satellites. using right now, आपके आप जो Satellites, कैलकुलेटर sir. यूज करते हैं, या सैटेलाइट आल्सो, या लेट्स सी, आप जो कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, ओके, अभी ये जो कैलकुलेटर मेरे पास है लेकिन इसकी यहाँ पे तो सोलर सेल नहीं है। ओके, आपके घर में अगर जो कैलकुलेटर रहता है तो वहाँ पे आपको एक छोटी सी प्लेट दिखाई देगी, सच दैट इज बट द फोटोवोल्टिक प्लेट। Okay, so that plate will directly absorb the heat energy from the sun and that will directly convert into the electricity. And second one is what? Solar thermal electricity. Here is what? Solar thermal. It means solar energy का conversion हम thermal energy में कर देंगे। सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हम थर्मल एनर्जी में करेंगे एंड ये थर्मल एनर्जी से हम क्या करेंगे, स्टीम प्रोड्यूस करेंगे। इस थर्मल एनर्जी से हम क्या करेंगे, स्टीम प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट स्टीम विल run the turbine. This steam will run the turbine. समझ में आया आपको दो मेथड्स? Yes, sir. यस, Yes, sir. फर्स्ट वन में तो डायरेक्टली क्या होगा कि आपके जो सन एनर्जी है उसकी वजह से फोटोवोल्टिक सेल्स के इलेक्ट्रॉन पास होना शुरू कर देंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और दूसरा क्या है, सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोलर से जो हीट आती है उस हीट का यूज हम क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करने में यूज कर देंगे और उससे जो थर्मल एनर्जी मिल जाएगी उसका यूज हम क्या करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे किसी वर्किंग फ्लूइड को। एंड ये वर्किंग फ्लूइड क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद टरबाइंस को रोटेट करेगा। एंड आगे का तो वर्किंग आपको पता ही है, टरबाइन विल रोटेट द जनरेटर, जनरेटर विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अगेन वो स्टीम हम कंडेंस करेंगे, फिर पंप के थ्रू हम आगे यूज करेंगे। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। आया समझ में आपको ये दो मेथड्स कैसे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yeah. So next layout of solar power plant. ये जो है आपकी क्या है, सोलर पावर प्लांट का लेआउट है। ये जो सेकंड वन ये आएगा आपका सेकंड, दूसरी जो है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द सेकंड वन। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया ये है आपके सोलर कलेक्टर्स, दिस आर द सोलर कलेक्टर। सो हियर दे एब्सॉर्ब व्हाट, दे एब्सॉर्ब द सनलाइट। नाउ सोलर कलेक्टर विल व्हाट दे आर डूइंग, सोलर कलेक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आपका जो वर्किंग फ्लूइड रहेगा इसको क्या करेंगे, वो हीट कर देंगे। हीट करने के बाद ये कहाँ पे जाएगा का, ये यहाँ पे जाएगा, ये हॉट वाटर टैंक है। इसमें जो है लेट्स सी, ये देखिए बेसिकली दिस इज द पंप। बेसिकली कहाँ से शुरू होता है आपका, फर्स्ट ऑपरेशन फ्रॉम द पंप। पंप से हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई पास कर देंगे इस कलेक्टर में। कलेक्टर में क्या हो जाएगा आपका, सनलाइट जो है, सनलाइट की वजह से ये जो वाटर है कोल्ड वाटर, ये क्या हो जाएगा आपका, हॉट वाटर हो जाएगा। ये हॉट वाटर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। नाउ ये जो हॉट वाटर है हम आगे क्या कर रहे हैं, हीट एक्सचेंजर में पास कर रहे हैं। हियर वी आर पासिंग दिस टू द हीट एक्सचेंजर। सो ये जो हॉट वाटर है ये इसकी हीट क्या कर देगा, ये यहाँ से सर्कुलेट हो जाएगा, तो इसकी हीट ये क्या करेगा, इस वर्किंग फ्लूइड को ट्रांसफर कर देगा। सो जो वर्किंग फ्लूइड यहाँ से आ रही है, अगेन वी हैव द अगेन सेकंड पंप, ये आपका प्राइमरी सर्किट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सर्किट।
Okay. Okay. This one. This one is your primary circuit. And जो आपका दूसरा है this one, this is your secondary circuit. ये आपका secondary circuit हुआ. दो सर्किट्स यहाँ पे हमने यूज किए. ओके, तो ये हुआ आपका सेकेंडरी सर्किट. सो प्राइमरी सर्किट जो है, प्राइमरी सर्किट में हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी सर्किट में हम हॉट वाटर का यूज करके क्या कर रहे हैं? आपका जो वर्किंग फ्लूइड है उसको Steam हीट कर रहे हैं. production. नाउ यहाँ पे इन सेकेंडरी सर्किट no, in primary circuit we are not producing the steam, we are just converting the cold water into the hot water approximately near about the 80 degree celsius. यहाँ पे जो hot water रहेगा approximately कितना जाएगा आपका 80 degree celsius के आसपास जाएगा. Here we are not converting the steam, just keep remember, here we are just converting the cold water. cold water का conversion हम किस में कर रहे हैं? सिर्फ hot water में. Hot water. Now ये जो यस, सो ये जो हॉट वाटर है ये क्या करेगा? यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट में देखिए, यहाँ पे अगेन पंप है, यहाँ पे दूसरा वर्किंग फ्लूइड है लाइक ब्यूटेन. यहाँ पे क्या है? अनदर सेकेंडरी वर्किंग फ्लूइड वी हैव, दैट इज द ब्यूटेन. सो ब्यूटेन हैज लो पावर बॉइलिंग पॉइंट. ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? कम है. इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से आपका जो ब्यूटेन यहाँ से पास हो रहा है ये क्या करेगा? इस वाटर से हीट एब्सॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटेन. इज इट? समझ रहे हैं आप? Yes, sir. सो यहाँ पे जो ब्यूटेन है वो स्टीम, यस, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. अगेन वो स्टीम हम क्या करेंगे? टरबाइन में पास करेंगे. सो टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होना शुरू कर देगा. ये शाफ्ट जो है इसको क्या बोलते हैं? हम कपलिंग. जस्ट कीप रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज अ कपलिंग. ये सिंबल आपका कपलिंग का है. सो दिस कपलिंग, दिस टरबाइन शाफ्ट कपल टू द जनरेटर शाफ्ट. ये आपका जनरेटर रहेगा, इसके शाफ्ट से हमने कनेक्ट किया है. सो जनरेटर विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ यहाँ पे जो ब्यूटेन आता है, ये ब्यूटेन की स्टीम, दिस इज द स्टीम ब्यूटेन. ये हम क्या करते हैं? अगेन कंडेंसर में पास करते हैं. कंडेंसर में ये स्टीम का कन्वर्जन, ओके, स्टीम का कन्वर्जन हम वापस क्या करेंगे? लिक्विड में करेंगे. ओके, अगेन दैट लिक्विड ब्यूटेन पासिंग थ्रू दिस पंप, अगेन पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर. आया समझ में? यस. Yes, sir. sir. How the solar thermal power plant works? This is the general layout of the solar thermal power plant. प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट है. प्राइमरी सर्किट में हम क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? वाटर को कोल्ड वाटर का कन्वर्जन सिर्फ हॉट वाटर में कर रहे हैं. अप्रोक्सीमेटली उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. नाउ दैट हॉट वाटर वी आर यूजिंग टू कन्वर्ट द वर्किंग फ्लूइड लाइक ब्यूटेन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू व्हाट? वेपर स्टेट. उस हॉट वाटर का यूज करके हम क्या करेंगे? आपका जो ब्यूटेन है लिक्विड का कन्वर्जन उसका हम स्टीम में कर देंगे. एंड दैट स्टीम वी आर पासिंग टू द टरबाइन. इट मींस थर्मल पावर प्लांट में जो आपका फ्यूल था वो क्या था? कोल था. ओके, देयर न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका जो फ्यूल था वो फ्यूल क्या था? यूरेनियम 235. एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो आपका फ्यूल था दैट फ्यूल इज द वाटर. एंड यहाँ पे जो आपका फ्यूल है वो फ्यूल क्या है आपका? यस. Butane. No, fuel. Sunlight. Fuel means Solar what? power. Sunlight. 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 Yeah, simply Sunlight. it is the sunlight. यहाँ पे फ्यूल क्या है आपका? सनलाइट इज द फ्यूल. फ्यूल मतलब क्या? जिसके थ्रू हम हीट एनर्जी लेते हैं, जिसके थ्रू हम एनर्जी लेते हैं. थर्मल में हम कोल के थ्रू एनर्जी लेते थे, हीट एनर्जी. न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूरेनियम 235 को बर्न करके उससे एनर्जी लेते थे. देन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम हीट एनर्जी तो नहीं लेते थे, लेकिन वाटर का कन्वर्जन हम किस में करते थे? एनर्जी में. वाटर एनर्जी का कन्वर्जन हम मैकेनिकल एनर्जी में करते थे. और यहाँ पे जो है हम सन एनर्जी का यूज कर रहे हैं हीट जनरेट करने के लिए. इज इट? सो हियर द सन इज द सनलाइट इज द फ्यूल. समझ में आ रहा है आपको? यस. Yes, sir. Okay, so this is the second method. First one is the photovoltaic
power plant, solar power plant, and second one is what? Solar thermal power plant. So this is the solar thermal, because let's see, this is the solar, and that solar energy we are converted into what? Thermal energy here. इस यहाँ पे इन दो जगह पे, फर्स्ट यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं. सो सोलर थर्मल पावर प्लांट. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू हाउ इट वर्क्स. आया समझ में? Okay, now next move towards the components of solar power plant. Solar power plant के components कौन से होते हैं? तो पहले तो रहता है आपका PV सेल और सोलर सेल्स. इट इज कॉल्ड एज द फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर सेल्स. अब एक जो सेल है, एक प्लेट, दिस इज हेक्सागोनल इन ऑक्टागोनल इन शेप, ये ऐसी प्लेट रहेगी. अगर हम एक प्लेट यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. Then next, when we are arranging that cells in parallel or series manner, ये parallel manner में first, second, third. Let's see here. I will change the color, pen color. Let's see. This is the first, second, third, fourth. So we are arranging the cells in the parallel manner. So this, when we are arranging this club, or we are clubbing this number of cells, so that is called as the module. Okay, and when we are arranging this module in different systems parallelly, ये हुआ आपका एक मॉड्यूल, ये हुआ आपका दूसरा मॉड्यूल, ये हुआ आपका तीसरा मॉड्यूल, ये हुआ आपका चौथा मॉड्यूल, दिस इज फिफ्थ मॉड्यूल, दिस इज सिक्स मॉड्यूल. सो जब हम ये मॉड्यूल्स अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अरे. आया समझ में? सिंगल प्लेट जो है उसको हम सेल बोलेंगे. व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड on one flat surface in parallel or series manner, then it is called as the module. And when we are arranging the modules, different modules, combining the module, then it is called as the array. आया समझ में आपको? Yes. Cells, Yes, sir. modules and arrays. Now next one is the batteries. अभी batteries तो आप सबको पता है. Why we are using the batteries? Store the electricity. Store the electricity. It stores the electricity. Then next is the inverter, and उसके बाद रहेगा आपका charge controller. So one by one we will see this one. So PV cells और solar cells. अभी देखिए, ये जो एक है, एक रहेगी. This is the cell. This is the photovoltaic cell. एक photovoltaic cell. Now this is made up of what? ये सेल किसकी बनी होती है? बताएं. Silicon. Silicon. Yes, it is by the silicon. Yeah, it is by the polycrystalline silicon, monocrystalline silicon, and amorphous cells. Okay, polycrystalline. Here you can see made from the semiconductors, thin types like the polycrystalline silicons, monocrystalline silicons here, and the amorphous cells. Okay, these are the silicon plates. Now let's see. It converts what its function? इसका function क्या है? It converts what? Radiation energy into the electrical energy. Directly ये क्या करते हैं? जो radiation energy आती है sunlight से, that radiation energy they are converting directly into the electrical energy. Now let's see how it converts. Let's see the photon of light, photon of sunlight has the energy greater than the band gap. Band gap मतलब क्या है? Band gap पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा है. It is the gap between the valence and conduction band. Yeah, band gap is what? It is the gap. It is the gap between what? Valence band and the conduction band. मतलब valence band से जब आपके इलेक्ट्रॉन्स conduction band में जाते हैं तो वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं. So to accumulate this gap, ये गैप accumulate करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको पुश करना पड़ेगा. सो हम इनको पुश कैसे करेंगे? आइदर बाय सप्लाइंग द एनर्जी ना. इसको हम जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हमने उनको पुश किया. सो ड्यू टू दैट एनर्जी दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ये जो गैप है, ये गैप है वो क्या करते हैं? ट्रेवल करेंगे, और जब वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तब उनका फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. So that photons from the sunlight has that much energy. They have the larger energy than this band gap. Okay. So photon of the light energy greater than the band gap, then electron is emitted and this flow of electron creates the
करंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया. नाउ लेट्स सी, जनरली द वोल्टेज जनरेटेड बाय द सिंगल सोलर सेल, ये जो सिंगल सोलर सेल आप देख रहे हैं, इसके थ्रू जो वोल्टेज जनरेट होता है वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.5 वोल्ट. दिस वेरी लेस, इट इज 0.5 वोल्ट एक सेल से. जब हम इन सेल्स को यूज करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, सो 2 यूज करेंगे तो 0.5 का कन्वर्जन किस में हो जाएगा आपका? 1 वोल्ट में. देन 1.5 2, so it reaches by the multiplication of 0.5. okay, so अगर आप ये देखेंगे सोलर सेल, तो इसका जो इनर सरफेस है आप ऐसे देखेंगे, ये जो है इनका स्ट्रक्चर, सोलर सेल्स का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे होता है. पहले आएंगे आपके मेटल कंडक्टर स्ट्रिप्स, इसके ऊपर आते हैं. देन बीच में और उसके नीचे सिलिकॉन्स के लेयर्स आते हैं. एंड बेस में मेटल बैकिंग. मेटल बैकिंग क्यों? क्योंकि जो भी हीट एनर्जी यहाँ से आएगी वो इसके थ्रू नीचे ना जाए, ये एनर्जी यहाँ पे ही एब्सॉर्ब हो जाए इस गैप में. यस, समझ रहे हैं? लाइट जो आएगी सनलाइट, ये यहाँ पे आएगी, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी सरफेस पे, देन ये नीचे भी पास होगी सिलिकॉन लेयर्स में. ये 2 सिलिकॉन लेयर्स आपको दिखाई देंगे हियर, फर्स्ट सिलिकॉन लेयर एंड दिस इज द सेकंड सिलिकॉन लेयर. और उसके पीछे मेटल बैकिंग है. मेटल बैकिंग का यूज क्या रहता है कि जो भी लाइट यहाँ पे आ रही है वो यहाँ से ट्रांसफर ना हो जाए, वो सब लाइट एनर्जी कहाँ पे हो जाए? यहाँ पे ही एब्सॉर्ब हो जाए. इसकी वजह से यहाँ पे मेटल बैकिंग दिया जाता है. ओके, यस, आया समझ में? Yes. So this is the Yes, PV sir. cells. Yeah. So when we are organizing these PV cells in different manners, then it is called as the PV module. मैंने आपको बोला. Now this will produce more electricity cells connected in what? Both series and parallel connection. दोनों के series and parallel connection में क्या करते हैं? यूज करते हैं. Now RS तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. ओके, नाउ कि आप देखिए आरएस के बारे में भी क्या पता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलर कलेक्टर. सो क्या इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलर कलेक्टर. देन पीवीआरएस प्रोड्यूसेस डीसी आउटपुट. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, डीसी आउटपुट. यहाँ से जो आउटपुट आता है आपका वो क्या होता है? डीसी रहता है, डायरेक्ट करंट. ओके, नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस डीसी इनटू व्हाट? एसी. बाय यूजिंग व्हाट? डीसी का कन्वर्जन हम एसी में करते हैं बाय यूजिंग व्हाट? Inverter. Inverter. बाय यूजिंग व्हाट? इन्वर्टर. हम क्या करेंगे? इन्वर्टर यूज करेंगे. इन्वर्टर का यूज करके हम डीसी का कन्वर्जन कहाँ पे करते हैं? एसी में करते हैं. ना जनरली आपसे अब ये तो आपने 12th में पढ़ा है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है. इज इट? अगर हम सीरीज में ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या करेंगे? वोल्टेज बढ़ाएंगे. अगर हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम क्या बढ़ाते हैं? करंट. Current. डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट इन सीरीज और पैरेलल मैनर. हमारा एप्लीकेशन कौन सा है उसके ऊपर हम अगेन ना. अभी ये जो सोलर Your कलेक्टर्स voice रहते is हैं ये lagging, sir. डिफरेंट टाइप्स हैं. Sir, Sir, voice voice break हो lagging. रही है. ओके, Yes, सोलर sir. कलेक्टर जो रहेंगे Voice break. इनके आई थिंक मे बी Sir, ड्यू टू voice द break नेटवर्क हो इशू रहा है. दैट वॉइस इज लाइक, या ड्यू टू द नेटवर्क इशू. आई थिंक ड्यू टू द नेटवर्क इशू. यहाँ पे क्लाउडी एनवायरनमेंट है थोड़ा सा, इसकी वजह से ऐसा होगा. ओके, नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट रेटिंग के लिए. नाउ we are using the different type of solar collectors. इन solar collectors से भी ये भी अलग अलग टाइप्स हैं. कौन से देखते हैं? पहला जो है वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. पहले का है आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. ओके, अभी ये जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैं ये हम क्या करते हैं? वाटर हीटर में या फिर स्पेस हीटर में या फिर कूलिंग एंड ड्राइंग में यूज करते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसा है. ये जो है ये फ्लैट ही है, यहाँ पे जो आपको दिखाई गए है वो क्या है? फ्लैट ही है. देन नेक्स्ट जो है आपका कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर्स, ये भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ. एंड नेक्स्ट वन इज द इवैक्यूएटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर्स. फ्लैट प्लेट, कॉन्सेंट्रेटिंग एंड इवैक्यूएटेड. तो फ्लैट तो यही हो गए, ये जो है वो. नेक्स्ट अभी देखिए बैटरीज. अभी सभी को पता है बैटरी किसके लिए हम यूज करते हैं? टू स्टोर द पावर जनरेटेड बाय द सोलर सेल्स. एंड whenever we required we are taking that power from this batteries. ये ऐसी बैटरीज रहेगी.
ना इन्वर्टर, इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर का यूज हम अभी मैंने आपको बोला, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम डीसी टू एसी, क्योंकि सोलर सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो क्या होती है आपकी डीसी, यानी डीसी का कन्वर्जन हम किस में करते हैं, एसी में, बाय द यूजिंग व्हाट, इन्वर्टर. Now we have the different type of inverters also, standalone inverter, synchronous inverter, multifunctional inverter. लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है. जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, you all of you belongs to the ENTC and electrical. So जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका पता चल जाएगा. Okay, but right now you just remember inverters are used to convert the DC into AC. Okay, अभी के लिए इतना आपके लिए काफी है. Now charge controller. Okay, now this is the very important charge controller. What it means, charge controller? It controls यहाँ पे the देखिए flow दिया of गया है फर्स्ट पॉइंट. What it regulates the voltage and current from solar cell before stored in the battery. बैटरी में स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज एंड करंट्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं, और उसको फिर बाद में हम क्या करते हैं. दूसरी बात ये है कि ये जो है इट विल प्रोटेक्ट द बैटरी फ्रॉम डिस्चार्जिंग बिलो द मिनिमम लेवल और चार्जिंग अबव द मैक्सिमम लेवल. आप क्या लिख सकते हैं, ओके अगर आप मोबाइल को ज्यादा ओवरचार्ज करते हो, ओवरचार्ज करने की वजह से भी आपकी बैटरी जो है वो जल्द खराब हो जाती है, और उसको अगर हर बार आप मिनिमम लेवल से भी कम रखते हो तो भी क्या होता है, वो बैटरी खराब होने के चांसेस है. मतलब आपकी जो बैटरी रहेगी, ओवरचार्ज करोगे तो भी खराब होगी, एंड लोअर चार्ज करोगे, मिनिमम लेवल से भी हमेशा उसको चार्ज रखोगे तो भी वो खराब हो जाएगी. सो इट इज recommended that you have to charge that battery between the provided limit. उस लिमिट में ही हमेशा वो रहनी चाहिए. So it will increase your battery life. So ये कौन काम करता है, ये चार्ज कंट्रोलर काम करता है. Now generally in current what your electrical vehicles they are using this charge controller. Electrical vehicles में ये चार्ज कंट्रोलर हम यूज करते हैं. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज हैं उनका लाइफ स्पैन जरा सा ज्यादा रहता है. अगर आप मोबाइल की बैटरी रखोगे तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं रहता है, वो जल्द से जल्द खराब हो जाती है. लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आप ये देखोगे बैटरीज, तो उनका लाइफ स्पैन ज्यादा रहता है ड्यू टू दिस चार्ज कंट्रोलर. अभी अभी जो कुछ मोबाइल्स हैं वो मोबाइल्स भी डायरेक्टली चार्ज कंट्रोलर के साथ ही आते हैं. अगर आपका मोबाइल 100% चार्ज हुआ तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं. इज इट? यस, Yes, sir. देखा होगा आपने. Yes, sir. यस, आई एम ऑडिबल? Yes. Yes, sir. Audible but not proper. Am I audible? sound Not is breaking. proper, sir. How's that? Yes. How's that? Sound is very breaking, sir. No, sir. There is a break in the sound. Okay. Yeah, let me switch off my camera so it will not have the more bandwidth. Okay. So आपके अभी के जो मोबाइल है उसमें चार्ज कंट्रोलर के साथ है ना. नेक्स्ट एडवांटेजेस. अभी इसके एडवांटेजेस क्या है सोलर पावर प्लांट के? इट इज व्हाट, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. फर्स्ट वन इज द, I think clear to you. Then once solar panel is installed, solar energy can be produced free of charge. अगर हम इसको एक बार इंस्टॉल करते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है, एनर्जी प्रोडक्शन वो क्या होता है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब इसके सिर्फ इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं, मेंटेनेंस के इतने ज्यादा चार्जेस नहीं है, फिर प्रोडक्शन के चार्जेस नहीं है. Then it will work up to the next 30 to 40 years. इसका लाइफ स्पैन 30 to 40 years का भी रहता है. Then it will not cause any pollution. Then solar cells makes absolutely no noise. Noise pollution भी नहीं रहेगा इसका. Then इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही कम रहता है, very little maintenance.
ओके देन इन द लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म का यूज करते हो, सो देयर कैन बी द हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी अ सोलर पैनल कैन प्रोड्यूस। ओके दैट इज द सेम पॉइंट, ये जो है ये दोनों लगभग सेम ही पॉइंट्स रहेंगे। इसके सिर्फ इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब तक भरते रहते हो तब तक क्या है कि आपको बिल भरना ही पड़ेगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आप एमएससीबी से एनर्जी लेते हो तो। सो अप टू सम एक्सटेंट कुछ दिनों के बाद वो जो बिल है वो बिल आपका क्या हो जाएगा, आपके इंस्टॉलेशन के चार्जेस इतना ही हो जाएगा, लेकिन आगे से जो आएगी, आगे से जो आपकी एनर्जी है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी ना, इज इट? सो दैट इज एडवांटेज। देन इसका डिसएडवांटेज बता सकता है कोई? यस, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस वन? सर कम इलेक्ट्रिसिटी It is बनाता है। not conventional. या सर रेगुलर आप ये क्लीनिंग देखेंगे, area. वेदर पे डिपेंड करता है। या Sir, it इट is not डिपेंड्स ऑन द वेदर conventional in आल्सो। rainy season. requires Rainy Cost, season. regular cleaning. cost is high. Expensive. It requires Expensive. huge area. Initial cost. Its initial cost is It- very high. Yes, firstly, the initial cost is high. Okay, but as compared to the other power plant, its cost is very low. But as you are using it is with the individual purpose, so its cost is that much high. Then next is what? It depends upon the weather. अगर आप रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन में देखोगे तो सनलाइट थोड़ी सी कम यूज होती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? इसको आपको जो मेंटेनेंस है, ओके मेंटेनेंस तो इतना रहता नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन दैट एट योर ओन पॉकेट। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोलर पावर प्लांट। नाउ अभी थर्मल सोलर पावर प्लांट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके हियर यहाँ पे सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हम वाटर यहाँ पे लेंगे, वाटर हीट करेंगे, ये यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में क्या करेंगे हम पास करेंगे, यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो ब्यूटेन है होगा, ये ब्यूटेन को हीट करेगा, स्टीम कन्वर्ट होगी इसकी, ये स्टीम हम टर्बाइन में पास करेंगे, टर्बाइन से ये फिर वापस आएगा आपका। ओके हियर वन मोर इज रिमेनिंग, यहाँ पे आपका जनरेटर दिखाना चाहिए था, टर्बाइन इज कपल्ड टू द जनरेटर, the generator will produce the electricity. now cooling tower का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ से जो स्टीम आ रही है this steam, उसको हम क्या करते हैं कूल करते हैं। ओके ये कंडेंसर ब्यूटेन यहाँ पे पास करेंगे, देन यहाँ पे वाटर रहेगा। ओके दिस वाटर यहाँ पे पंप रहेगा, इस पंप के थ्रू यहाँ पे पास करते हैं, वाटर का कन्वर्जन हॉट वाटर में हो जाएगा। नाउ दिस हॉट वाटर विल सप्लाई द हीट टू दिस ब्यूटेन। ओके दिस इज थर्मल सोलर पावर प्लांट। ना यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर प्लेट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर प्लेट्स हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, evacuated tube collector, line focus collector and point focus collectors. Now let's see the first one, flat plate solar collectors. So whatever be the we are using on our sun house roof, ये जो है ये आपके सिंपली फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स है। ओके देन डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स वाटर हीटर इसके लिए यूज करते हैं, स्पेस हीटिंग के लिए भी यूज करते हैं। देन फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स इज बेसिकली द ब्लैक सरफेस दैट इज प्लेस्ड एट द कन्वेंट पाथ ऑफ द सन। इसमें इतनी ज्यादा कुछ नहीं पता नहीं। देन ओके नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट ना इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स। अब ये जो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स है अगर आप देखेंगे तो ये आपके वाटर हीटर में जो डोमेस्टिक वाटर हीटर आप यूज करते हैं सोलर वाटर हीटर, इसमें आपने ये देखे होंगे, इज इट? देखे क्या आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को पता है उसका वर्किंग कैसे चलता है, हाउ इट वर्क्स? यस हाउ इट वर्क्स? अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो यहाँ पे टैंक दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एक टैंक दिखाई देता है, इस टैंक के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेम स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आपने ये ब्लैक ब्लैक कलर्स के ग्लास कोटेड ट्यूब्स देखे होंगे, यहाँ पे ग्लास कलेक्टेड ट्यूब्स रहते हैं, इज इट? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ग्लास रहती है, ग्लास के अंदर आपके ब्लैक कलर सरफेसेस के काम बाद में सो इनका यूज करके हम क्या करते हैं वाटर को हीट करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, इनका वर्किंग कैसे होता है। ओके सो फॉर दैट आई विल शो यू वन वीडियो सो आई यू कैन
ओके, बेसिकली ये आपकी फ्लैट प्लेट ही रहेगी। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे। ओके, अभी इस एक प्लेट्स के कितने हो गए? लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हो गए। ओके, इस एक प्लेट के मैंने कितने पार्ट कर दिए? 8 पार्ट्स कर दिए। नाउ इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक मेटल का हीट पाइप लगाते हैं इनके ऊपर। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के हीट पाइप्स हमने यहाँ पे लगा दिए। ओके, हीट पाइप्स। नाउ कोई मुझे बता सकता है अभी इसका फंक्शन क्या हुआ? यस, अब तक का फंक्शन कैसे हो सकता है? कोई बता सकता है? Absorb solar energy. यस, ये जो आपके नीचे जो फ्लैट प्लेट्स थे, हीटिंग के लिए ये जो सर, फ्लैट प्लेट्स थे, हीटिंग। या ये जो फ्लैट प्लेट्स रहेंगे, ये क्या करेंगे? सोलर से एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। उस एनर्जी का कन्वर्जन उसमें वो क्या कर देंगे? हीट एनर्जी में कर देंगे। और जैसे वो हीट एनर्जी में करते हैं, तो हीट पाइप जो हमने इसके ऊपर ये माउंट किए हैं, ये हीट पाइप इसके ऊपर जो हमने माउंट किए हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड रहे उसको हीट करने के लिए ये यूज करवा होगा। ओके, ये प्लेट जो है ये हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। वो हीट एनर्जी हम हीट पाइप को देंगे। सो हीट पाइप के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होगा उससे वो हीट हो जाएगा वर्किंग फ्लूइड। ना उसके ऊपर से हमने ये ग्लास के ट्यूब्स लगाते हैं। ये जो ग्लास के ट्यूब्स होते हैं, इसमें से वैक्यूम निकाल ली जाती है। ये जो ग्लास के ट्यूब्स रहते हैं ना, इससे वैक्यूम निकाली जाती है। कोई बता सकता है क्यों वैक्यूम क्यों निकालते हैं इसमें से? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वो वाटर से आयरन पाइप्स को गलना लगे सर। नो, यस, वैक्यूम, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ से एयर निकाली जाती है और टोटली वो सरफेस वैक्यूम रहता है। Yes. Is there any relation between the vacuum and heat? सर एयर से वो कूल होते रहेगा। एयर से कूल होता रहेगा। ओके ओके, नेक्स्ट। यस, वैक्यूम cannot absorb heat. यस, वैक्यूम जो रहता है आपका, वैक्यूम में रेडिएशंस एंड कंडक्शन और कन्वेक्शन दैट आर नॉट टेक प्लेस। इज इट? वैक्यूम में आपके रेडिएशंस एंड कन्वेक्शन जो रहता है वो टेक्स प्लेस नहीं होता है। आपके पास आप सब ये यूज करते होंगे बॉटल किसकी, वाटर बॉटल, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मस फ्लास्क। इज इट? स्टील की बोतल देते हैं ना आपकी, थर्मस फ्लास्क। Yes, sir. Yes, sir. किसी को पता है उसका या हाउ इट वर्क्स? वो थर्मस फ्लास्क जो रहता है वो कैसे work होता है, इसको पता है? शो द पिक्चर ऑफ दैट थर्मस फ्लास्क। यस, किसको पता है उसका वर्किंग? दिस वन, देखिए सर वो एडियाबेटिक वॉल्व। Those still It is isolated system which does not allow the air Isolated to adiabatic enter. walls. हाउ इट इज करेक्ट, बट हाउ? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कभी, तो स्ट्रक्चर में आपको ऐसे दिखाई देगा कि outer आपकी ये bottle जो, or inner bottle. या इसमें आपको दो पाइप्स दिखाई देंगे रहेगा, और उसके बाहर एक ये जो है आपका आउटर सिलेंडर है, और उसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर है। दोनों के बीच में जो एयर रहती है ना, वो एयर क्या की जाती है? निकाल ली जाती है। ओके, यहाँ पे शायद नहीं होगा ऐसे इमेज। ओके, इन दोनों के बीच में की जो एयर है वो एयर निकाली जाती है, उसको पूरा क्या किया जाता है? वैक्यूमेट किया जाता है। सिर्फ उसमें क्या रहती है? वैक्यूम रहती है। सो वैक्यूम की वजह से क्या होता है? ओके, हियर यू कैन दिस, लेट्स सी। ओके, हियर लेट्स सी, हियर आप देख सकते हैं, ये देखिए,
अब ये जो है ये प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक का क्या है कि यहाँ पे प्लास्टर कवरिंग, इंसुलेटिंग कवरिंग यूज किया है, सो इसकी वजह से हीट अंदर से बाहर से अंदर नहीं जाती, बट इट इज नॉट दैट मच इफिशिएंट। अगर आप देखेंगे ना, आप कभी भी देखिए कि जो प्लास्टिक का कवरिंग वो बॉटल है, ऐसा बॉटल्स, दैट इज नॉट दैट मच इफिशिएंट, वेयर एज दिस स्टील, जैसे स्टील के बॉटल्स रहते हैं, दिस वन, ऐसे बॉटल, दिस आर एफिशिएंट वन। व्हाई दिस आर? बिकॉज जो बाहर का सिलेंडर है इसका, आपने देखा होगा कि इसका डायमीटर तो ज्यादा रहता, क्यों? क्योंकि अंदर एक दूसरा सिलेंडर रहता है, उसका साइज कम रहता है डायमीटर, और बाहर जो सिलेंडर रहता है उसका डायमीटर ज्यादा रहता है। सो बोथ सिलेंडर्स, जो दोनों सिलेंडर्स रहते हैं, फ्रॉम दैट सिलेंडर स्क्रैप वी आर जस्ट रिमूविंग द एयर एंड वी आर मेकिंग दैट एज द वैक्यूमेटेड। सो वैक्यूम की वजह से, वैक्यूम की हीट लूज नहीं होती, या फिर अगर आपने कोल्ड वाटर भी रखा होगा तो भी उसकी हीट जो आया समझ में? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या सो हियर इज द सेम, यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब में यूज कर रहा हूँ उसका भी फंक्शन वही है सेम। अंदर जो हीट जनरेट होगी वो हीट क्या हो ना हो जाए, एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो जाए, इसकी वजह से ग्लास ट्यूब में यहाँ पे यूज करता हूँ। अभी यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का एक ड्रम रखा है, इस ड्रम से क्या होता है कि वाटर पास होगा, यहाँ से कोल्ड वाटर आएगा आपका राइट हैंड साइड से, लेट्स सी, यहाँ से राइट हैंड साइड से कोल्ड वाटर आएगा, वो वाटर हीट होते 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 लेफ्ट साइड से निकल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ एक्चुअली इट ऑपरेट्स। अभी ये जो है, ये मैंने आपको जो ड्रम दिखाया ना, अभी ये ड्रम है, यहाँ पे यहाँ से वाटर अंदर जाता है, ये जो है वो ग्लास ट्यूब बाहर जो आपको दिख रही है ये ग्लास ट्यूब रहेगी। नाउ दिस इज द फ्लैट प्लेट, ये जो है ये क्या है आपकी फ्लैट प्लेट है, उसके ऊपर ये मैंने हीट पाइप लगाया है। अभी देखिए कि इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है, जनरली वी आर यूजिंग द वर्किंग फ्लूइड एज अल्कोहल। जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्कोहल वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं हीट पाइप के वक्त। जब शाम के वक्त क्या होता है, वो जो अल्कोहल है वो यहाँ पे बेस में एक्यूमुलेट हो जाता है, ये यहाँ पे अल्कोहल यूज करते हैं, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, हीट लैटेंट हीट भी कम रहती है, इट रिक्वायर्स द लो लैटेंट हीट। यस, व्हाट इज मीन बाय द लैटेंट हीट? सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट बताइए मुझे। Heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. No, I'm asking about the sensible heat. Whatever you have said, that is what? Heat absorbed or released by the substance when it changes its physical state. Heat that can be felt. Yeah, latent heat का can मतलब experience. no, Sensible sensible, heat. okay. Whatever you tell, yeah, whatever you are told, that is a sensible heat. Sensible heat मतलब क्या है कि वो हीट हम सेंस कर सकते हैं। ओके अगर आपने लेट सपोज आपने एक रॉड ले लिया, उसको सुबह हमने आपने क्या कर दिया, बाहर रख दिया। सुबह आप जब उसको बाहर रखते थे उसका टेम्परेचर आपने आपको सेंस हुआ था कि यार अब इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, लेकिन जब आप दोपहर को उस रॉड को हाथ लगाते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो दैट हीट यू कैन इजीली सेंस, सो दैट इज द सेंसिबल हीट। नाउ लैटेंट हीट मींस व्हाट? दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होने के लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ती है वो हो गया आपकी लैटेंट हीट ऑफ लिक्विडाइजेशन। एंड लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होने के लिए आपको जितनी हीट देनी पड़ती है उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। इज इट? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So just keep remember, sensible heat means what? We can sense that heat, we can sense that temperature, that is a sensible heat. And latent heat मतलब उसका फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर, वो फेज चेंज करने के लिए जितनी हीट हमें देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, latent heat. Latent heat. Okay. So let's see. So the latent heat of this alcohol is basically formed to the vapor form. So
अभी देखिए कि सुबह सुबह जब सूरज आता है, सन निकलता है, तो उस सन की हीट की वजह से ये जो बेस प्लेट हमने लगाई है वो क्या करती है, हीट एब्सॉर्ब करेगी सन से, और हीट जो हीट पाइप रहेगा उसके अंदर ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स, इसको क्या करेंगे, वो हीट करेंगे। सो ये जो हीट की वजह से ये ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ये ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे वो सब क्या हो जाएंगे, वेपर फेज में इस ट्यूब्स में जाएंगे। देखिए यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वाटर पास कर रहे हैं, सो दैट वाटर विल एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस अल्कोहल। वो वाटर क्या करेगा, यहाँ से हीट एब्सॉर्ब करेगा। आया समझ में? Yes, sir. So to what temperature does the water heat up? वाटर एक्चुअली, टेम्परेचर ऑफ वाटर, अभी आप जो बोलते हैं कि वाटर हीट हुआ है, ये हम कब बोलते हैं, लिखिए कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस। आप किसके लिए यूज कर रहे हो, उसके लिए 28 डिग्री सेल्सियस तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसको 40 डिग्री बोलेंगे तब भी मैं उसको हॉट ही बोलूंगा। अगर आप मैं उसको 80 डिग्री से करता हूँ तो भी मैं हॉट बोलूंगा। 100 डिग्री है तब भी हॉट ही बोलूंगा ना। जब So भी is there टेम्परेचर any आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, इट मींस is there व्हेनेवर any योर limit टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेयर। is there any Yes. limit for that heating or like the Yeah. temperature? Like if it has 100 degrees Celsius, it won't go beyond that. This one Like up to is the there any 80 limit? degrees. 80. Thank you. Okay. Any doubt? Okay. No, sir. So this is how the evacuated tube collectors are work. इसी evacuated tube collectors क्या होते हैं, वर्क होते हैं। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now line focus collectors. Okay. Now line focus collector और parabolic। अभी देखिए इसमें जो है, इसमें क्या है कि ये पैराबोलिक शेप के आपके कलेक्टर्स रहेंगे। लेट्स सी हियर दिस सिंगल वन, ये सिंगल देखिए आप, दिस सिंगल वन, यहाँ पे देखिए ये पैराबोलिक टाइप के क्या है आपके कलेक्टर्स है। इसको हम पैराबोलिक टाइप मिरर भी बोल सकते हैं। ओके, सो देखिए जो भी सनलाइट आती है यहाँ से, ये यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सनलाइट आएगी, इस सरफेस के ऊपर आएगी ना, जो भी सनलाइट आएगी इस सरफेस के ऊपर आएगी। सो दिस सरफेस विल रिफ्लेक्ट दिस सनलाइट टू द पर्टिकुलर पॉइंट। इसको क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी टू द पर्टिकुलर पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट में उसको रिफ्लेक्ट करने की वजह से ये जो ट्यूब्स रहती है, इस ट्यूब्स के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हीट हो जाएगा। पर्टिकुलरली इस ट्यूब के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड मैं पास कर रहा हूँ वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैराबोलिक फ्लैट कलेक्टर है, ये जो यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है सनलाइट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। उस सनलाइट को हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट मींस वी आर डाइवर्टिंग दिस टू द लाइन, ऑन अ वन लाइन, एक लाइन पे हम इसको क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट। That's why it is line focus collector and these are the parabolic plates। ये parabolic plates है, इसलिए हम इसको parabolic भी बोल सकते हैं। So both are the same। आया समझ में? इसका एक सादा एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जो सिंपल एग्जांपल आपने बचपन में भी खेला होगा। आप एक पेपर के शीट्स थे, छोटे छोटे पेपर के शीट्स, आप क्या करते थे, सनलाइट में लेके जाते थे, और आपके पास वो एक फोकस मिरर था, क्या बोलते हैं हम उसको, Magnifying glass. Magnifying glass. का एक फोकस, ओके मैग्नीफाइंग, यस ओके मैग्नीफाइंग ग्लास। उसको आप क्या करते थे, सनलाइट में लेके जाते थे। सो मैग्नीफाइंग जो ग्लास रहती है वो क्या करता है, उस पूरे सनलाइट को एक पॉइंट पे ही क्या करता है, एक्युमुलेट करता है। सो उस पॉइंट के नीचे आप वो पेपर का पीस रखते थे। सो जहां पे वो पेपर के पीस पे क्या होता था कि उसी सिंगल पॉइंट पे हीट ज्यादा रहती थी। इज इट? समझ रहे हैं आप? Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. हो, Yes, सो दैट sir. इज द सेम थिंग इज हियर। यस, सो दैट इज द सेम थिंग हियर। यहाँ पे भी सेम ही है। डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे क्या हो रहा है, आपका सनलाइट आ रहा है। सो इन सभी भी सनलाइट्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन पे क्या कर रहा हूँ, एक्युमुलेट कर रहा हूँ। सो एक लाइन पे इसको एक्युमुलेट करने की वजह से जो वो फ्लूइड यहाँ से पास होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हीट हो जाएगा ना। सो दिस इज द पैराबोलिक। आया समझ में? या यू कैन आल्सो कॉल इट कॉन्वेक्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट इज द पॉइंट फोकस कलेक्टर। अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या हो गया, आपका पॉइंट फोकस कलेक्टर। ये ऐसे यूज करते हैं, जो डिश स्ट्रक्चर रहेगा आपका, ये देखिए दिस टाइप डिश स्ट्रक्चर रहेगा ना, सभी की सभी जो हीट रहेगी वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगी, आपकी एक्युमुलेट हो जाएगी। कहां से भी आने दो, इस डायरेक्शन से आने दो,
इस डायरेक्शन से आने के बाद फिर वापस इस पॉइंट पे चली जाएगी, यहाँ पे भी आने के बाद वो सिर्फ अगेन इस पॉइंट पे चली गई। सो ऑन अ सिंगल पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, आपकी पूरी की पूरी हीट क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। फ्रॉम दैट, ऑन दैट पॉइंट वी आर जस्ट हीटिंग द फ्लूइड। ओके, दिस इज द पॉइंट फोकस। मतलब मैंने यहाँ पे जो किया वो सिर्फ क्या किया, एक पॉइंट पे सनलाइट को फोकस किया। और प्रीवियस जो था, प्रीवियस मैंने क्या किया है, एक लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया है, पॉइंट्स को फोकस किया है। यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे ये यहाँ इस पॉइंट पे फोकस होगी, यहाँ से जो आएगी वो इस पॉइंट, मतलब लगभग वो पूरा लाइन, जब हम एक एक पॉइंट कनेक्ट कर देंगे सो उससे एक लाइन पास होगी। सो दैट इज द लाइन फोकस कलेक्टर, एंड ये जो है वो पॉइंट फोकस कलेक्टर। समझ में आया पॉइंट फोकस कलेक्टर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. आपके घर में जो आप जो डिश यूज करते हैं ना, और उसके ऊपर आपके फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेटर रहता है, डिश जो रहती है आपकी उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेटर रहता है, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्या करता है, कैप्चर करता रहता है। सो आप जैसे रिमोट का बटन दबाते हो, आप जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हो उस सेट टॉप बॉक्स को, सो जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वो चैनल क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, रिमोट से जो आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो उसको बटन आप प्रेस करो, इसका मतलब उसको फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, सो फ्रीक्वेंसी जाएगी, आप जो बटन दबाओगे वो फ्रीक्वेंसी सेट टॉप बॉक्स पे क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। सो जब वो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कहाँ पे दिया जाता है, इस फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेटर को दिया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेटर जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही है आपके सैटेलाइट से, वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। अगर लेट सपोज आपने क्या किया, 120 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या कर दी आपने, सेट कर ली। सो 120 मेगाहर्ट्ज पे 120 सॉरी हाँ सॉरी 210 मेगाहर्ट्ज पे जिस फ्रीक्वेंसी का चैनल चल रहा होगा वो चैनल आपके क्या हो जाएगा, टीवी सेट पे दिखाई देगा। ओके, सो दैट इज द पॉइंट कलेक्टर। सभी फ्रीक्वेंसी एक ही पॉइंट पे क्या हो जाती है, आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so this is the point collectors. So this is about the thermal power, sorry solar power plant. ये आपका solar power plant का हुआ। Now I think this subject is quite interesting or not? Yes. Yes, sir. Very Is it interesting? interesting. किसी को, Sir, interesting. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. या किसी को कोई Yes. डाउट वगैरह है, या फिर किसी को लगता है कि दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग? No, sir. Okay, I think this is interesting. So the whatever you are learning in this subject, this is interesting, and also the mechanical engineering field is very vast. Also all these things are comes under the mechanical engineering field. ये जो सब फील्ड देख रहे हैं हम, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। नाउ हियर अभी जो जनरेशन है, इस जनरेशन में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी, कंप्यूटर, आईटी, सिविल, we have the many students, they are completed their degree from the civil background and they are working now in the IT industries. So it means, let's see, if you are from the civil background also, then also they can work in the IT industries by using or by completing the extra courses like your Python, like your data science, like your artificial intelligence, like your machine learning, like the deep learning. So anyone can learn that things, and you can accumulate yourself in the IT industries. But the mechanical engineering field